اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں برکت لائیں، اپنی زندگی میں برکت لائیں. برکت کی دعا کی اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. اب برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا، ان 2 مہینوں میں خصوصی طور سے ایسے کام کرو جس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، جس سے عمریں بڑھتی ہیں، جس سے رزق بڑھتا ہے. رزق بڑھتا ہے تو رزق بڑھ گیا تو عمر بھی بڑھ جائے. رزق زیادہ ہے، سٹاک زیادہ ہے، لیکن کھانے والا چلا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک ایک دانہ بھی ہے تو یہ آدمی کو روح لینے والا فرشتہ نہیں آتا. جب دانہ ختم ہوتا ہے تو بندہ ختم ہوتا ہے. بندہ ختم ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ دانہ ختم ہو گیا. یعنی فرمایا اب ایسے کام کرو جس سے رزق بڑھتا ہے. رزق بڑھتا ہے استغفار سے، رزق بڑھتا ہے ماں باپ کی خدمت سے، رزق بڑھتا ہے بڑوں کی قدردانی سے، رزق بڑھتا ہے بڑوں کی عزت افزائی سے، رزق بڑھتا ہے ماں باپ کی فرما برداری سے. میرے دوستو، یہ ماں باپ ہماری رزق کے ٹاور ہیں. ٹاور جہاں ہوتا ہے وہاں پر سگنل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے. فرمایا رزق کے ٹاور ماں باپ کی شکل میں اللہ نے گھر میں عطا فرمائے ہیں. جہاں پر ماں باپ ہوتے ہیں وہاں رزق کے فرشتے وافر مقدار میں آتے ہیں. تم سوچتے ہو میری ڈگری کا کمال ہے، میرے ذہن کا کمال ہے. تف ہے، کوئی ڈگری کا کمال نہیں. یہ تمہارے ماں باپ کا کمال ہے، ماں باپ کا کمال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے والدین کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو فرما بردار لکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندے میرے نافرمان ہیں لیکن والدین کے فرما بردار ہیں، میں ان کو فرما برداروں میں لکھتا ہوں. جو بندے میرے فرما بردار ہیں لیکن والدین کے نافرمان ہیں تو میں ان کو نافرمانوں میں لکھتا ہوں. تو معلوم ہی ہوا والدین کی فرما برداری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کا بڑا مقام ہے. میرے دوستو، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. ہم نے عادت بنا لی ہے جب تک ماں باپ مرتے نہیں ہم روتے نہیں. ہم نے عادت بنا لی ہے. اولاد اس وقت روتی ہے جب نعمت ہاتھ سے چلی جا چکی ہوتی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو ایک مرتبہ چلی گئی تو واپس نہیں آتی. یہ وہ دولت ہے جو ایک مرتبہ بندہ کھو دے تو نہیں پا سکتا. آج کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کوئی مجھے نام سے بلانے والا آ جائے، نام سے بلانے والا آ جائے، لیکن وہ آواز کانوں میں نہیں پڑتی، تل ملا جاتی. وہ چہرے نظر نہیں آتے جن کے چہروں کو دیکھ کر پورا دن سکون سے تھکا ہوا دن بھی رات میں سکون سے تبدیل ہو جاتا تھا. وہ جھریوں والے چہرے نظر نہیں آتے. لوگ پریشان ہیں. ماں عظیم دولت ہے میرے دوستوں، ماں عظیم دولت ہے. اس نعمت کی قدر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میرے خوش اخلاقی کا، میرے کائنڈنس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں ہے. پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا تمہاری ماں ہے. اس کے بعد کون ہے یا رسول اللہ؟ تمہاری ماں ہے. 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ. ماں وہ عظیم ہستی ہے میرے دوستوں. جب یہ نعمت چلی جائے گی
ईद के दिन तुम्हें कोने तलाश करोगे, मैं कहाँ हूँ। ईद के दिन घर आओगे, वो हलचल नहीं रहेगी, वो रेल बेल नहीं रहेगी। माँ एक थी, पकवान 7 पकते थे। माँ 7 क्यों बनी? तू रोटी नहीं खाता ना बा, तेरे वास्ते सेवियां बनी। तू सेवियां नहीं खाता ना बा, तेरे वास्ते पूरी। 7 बेटों के लिए 7 पकवान बनते हैं। माँ चली जाएगी, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे नौजवानों, परेशान हो जाओगे, कहीं तुम्हें आसरा नहीं मिलेगा। इन नेमतों की कदर करो, इन नेमतों की कदर करो, इन नेमतों की कदर करो। माँ जो हस्ती है, माँ की जो हस्ती है, अल्लाह ने हर घर में दिया है और कहा है मेरी रहमत देखना है तो माँ में देखो, मेरी रहमत देखना है तो माँ में देखो, मेरी रहमत देखना है तो माँ के चेहरे में देखो। कितने प्यार से देखती है, कितने प्यार से देखती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ की मोहब्बत को मैंने उस वक्त पहचाना जब खाने वाली चीजें 6 थीं और खाने वाले 7 थे। 7 खाने वाले हैं और 7 रोटियां हैं। खाने वाले 7 हैं और रोटियां 6 हैं। तो माँ कहती है मुझे रोटी पसंद नहीं, मुझे रोटी पसंद नहीं है। किसने कहा? माँ कहती है मुझे रोटी पसंद नहीं, बस चाहती है कि मेरा बेटा सुकून से खाए, चाहती है मेरा बेटा सुकून से रहे, मेरा बेटा खुश रहे, आराम से रहे। एक माँ 7 बेटों को पालती है और 7 बेटे एक माँ को नहीं पालते। लेकिन अल्लाह ने भी ऐसा करना किया है, ऐसा करना किया है। अल्लाह अकबर। अक्सर नौजवान जब इस काबिल बनते हैं कि अब मैं माँ की खिदमत करूंगा, अल्लाह कहते हैं वक्त हो चुका। अल्लाह माँ को अपने पास बुला लेते, माँ को अपने पास बुला लेते। हर माँ बुढ़ापे में नहीं जाती मेरे दोस्तों, नौजवानों। माँ की कदर करो, माँ की कदर करो। माँ को जहरीले सांप ने काट लिया, बेटा हाथों में लेकर अस्पताल गया और माँ को जहरीले सांप ने काटा है। पूरा जिस्म में जहर फैल चुका है, उसके होंठ सूख गए हैं, आंखें इधर उधर फिर रही हैं, लगता ऐसा है किसी को तलाश कर रही है। बेटा आया, माँ ने कहा बेटा पानी पीना चाहती हूँ। और हकीकत बात ये है कि माँ को पानी की कोई जरूरत नहीं थी। बेटा जब पानी लेने गया, माँ ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब सस्ता इंजेक्शन लिख को दियो, डॉक्टर साहब मेरे बेटे के पास पैसे नहीं, मेरे बेटे के पास पैसे नहीं, डॉक्टर साहब सस्ता इंजेक्शन लिख कर दियो। ये माँ है, मरते मरते भी तुम्हारे पैसों की फिक्र है कि तुम्हारे पैसे खर्च न हो जाएं। मेरे दोस्तों, आज हम उन्हें कहते हो लालची हो, आज तुम उन्हें कहते हो हरीस हो, पैसा पैसा पैसा, क्या करती मैं पैसा, उन्हें कहते हो। अरे नौजवान, तेरे पैसे बचाने के लिए माँ चलकर जाया करती थी। वो चाहती तो ऑटो ले सकती थी, वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। तेरे फीस भरने के लिए माओ ने शिवाजी नगर तक पैदल चलने का सफर किया है। वो पैसे बचाने के लिए चलकर आ जाया करते थे। किसके लिए? इस नौजवान बेटे के लिए। हम बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, हम बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। मेरे नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, माँ बाप की कदर उनकी जिंदगी में करो। बेटा वापस आने तक माँ नहीं रही। डॉक्टर सस्ता इंजेक्शन क्या देता, माँ इसी सोच में चली गई मैं मर गई तो अच्छा मेरे बेटे के पैसे बच जाएंगे। और आज बेटे के पास वक्त नहीं है माँ को देने, वक्त नहीं। माँ अजीम नेमत है, माँ अजीम नेमत है। इसकी कदर उसकी जिंदगी में करो। वो नहीं चाहती कि तुम्हारे पैसे खर्च हो,
पैसे नहीं देना चाहते, मुस्कुराहटें दे दो, मुलाकातें दे दो। बूढ़ी माँ अपना टूटा फूटा फोन लेकर गई थी ना, टूटा फूटा फोन लेकर, एक छोटा फोन लेकर गांव से बाहर निकलकर शहर आई। शहर सिर्फ इसलिए आई, दुकान वाले को, फोन के दुकान वाले को फोन देकर कहा कि ये रति चेक करो बा, रति देखो बा। उन्हें देखकर बोलिया क्या भी नहीं माँ, पूरा बराबर है, अच्छा है फोन। तो माँ ने कहा फिर मेरे बेटे का फोन ही चाहता नहीं ना, नहीं आता फोन, नहीं करते हम। बीवी को 10 बार फोन करेंगे, माँ को एक मर्तबा फोन कर कर नहीं पूछते तुम्हें खाए क्या नहीं, तुम्हें खाए क्या नहीं, कभी हमारे दिल में नहीं आता। जिस माँ ने अपने आप को गुलाम बना दिया, 24 घंटे वाला, अगर कोई गुलाम देखना है तो माँ को देखो। जब तुम पैदा हुए थे ना, उस वक्त से उसने अपने लिए जीना छोड़ दिया। तुम्हारे पैदा होने से पहले बाप के साथ कहीं बाहर जाती तो अपने लिए कीमती कीमती ड्रेस लेती। पैदा क्या हुए, माँ देख रही होती है अच्छा फीडर कहाँ है, माँ देख रही होती है मेरे बेटे के लिए ये कपड़े कैसे रहेंगे, ये सॉक्स कैसे रहेंगे, ये जूते कैसे रहेंगे। अपना छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। और जब तुम इस काबिल बने कि उनके लिए कुछ कर सको, तुम सब कुछ बीवी को करते रहे और माँ को पूछा तक नहीं, माँ को देखा तक नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन माँ वो हस्ती है, उस हस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना मकाम दिया है, इतना मकाम दिया है। माँ अगरचे गुनहगार सही, लेकिन बेटे के हक में जब दुआ करती है, अल्लाह ऐसे कबूल करते हैं जैसे नबी की दुआ कबूल करते हैं। माँ की अजीम नेमत को पहचानो नौजवानों, माँ की अजीम नेमत को पहचानो, इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है, पूरी दुनिया की तहकीक है। गौर से सुनो नौजवानों, पूरी दुनिया की तहकीक है कि जब दुनिया में आने का वक्त होता है, माँ को जो तकलीफ होती है, माँ को जो तकलीफ होती है, मैं जो दुनिया में आया माँ की तरफ से आया, माँ को जो तकलीफ हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम मैच खेलते हुए एक बॉल आकर लगता है, एक हाथ ट्विस्ट होता है, एक हड्डी टूटती है, 40 दिन का बेड रेस्ट डॉक्टर लिखकर देता है, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, और पैर की हड्डी टूटती है, 6 महीने बेड रेस्ट लिखना पड़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक हड्डी टूटने पर तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, पैर नहीं रख सकते। फरमाया जब तुम पैदा हुए थे ना, जब तुम पैदा हुए थे ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतना दर्द माँ को होता है, इतना दर्द माँ को होता है। पूरे जिस्म की हड्डियां एक वक्त में टूट जाए तो कितना दर्द होता है, उतना दर्द माँ को बच्चे की विलादत पर होता है। अल्लाह अकबर। और इतना जख्म में चूर, इतना दर्द सहने के बाद जब तुम्हें उसके गोद में लिया जाता है, वो एक ही दिन था, वो एक ही दिन था जब मैं रोया था और मेरी माँ हंसी थी। वो मेरी और मेरी मुलाकात, माँ की मुलाकात का पहला दिन था। मैं रो रहा था, मेरी माँ हंस रही थी, एक ही दिन था। उसके अलावा मुझे कोई दिन याद नहीं कि मैं रोया हूँ और मेरी माँ हंसी थी। इतना दर्द सहने के बावजूद तुझे देखकर हंसी थी, तुझे देखकर मुस्कुराया था, मुझे देखकर मुस्कुराया था। इतनी मोहब्बत करने वाली, उतनी तकलीफ देकर हम आए। चाहिए तो ये था कि इस बच्चे को दीवार पर फेंक कर मार दिया जाता, लेकिन माँ ने सीने से लगाया, माँ ने सीने से लगाया, अपने खून को दूध की शक्ल में पिलाया। 2.5 साल पिलाती रही, 2 साल पिलाती रही।
वो नहीं खाती थी जब तक मैं ना खाता था, वो नहीं सोती थी जब तक मैं ना सोता था, वो नहीं पीती थी जब तक मैं ना पीता था। और आज हम पूछते हैं तुमने क्या किया? जानवर भी बच्चा को पाला था, तुम्हें क्या बड़ा काम करे? आओ मेरे नौजवान भाई, ये पूछने के लिए माँ ने दर्द सहा था। दुनिया की तहकीक है कि सबसे ज्यादा तकलीफ इंसान को जिंदा जलाने पर होती है। इंसान को जिंदा जला दिया जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसे होती है। उसके बाद अगर किसी का दूसरा नंबर आता है तो वो माँ का नंबर आता है। और हुक्मा ने फरमाया है, जो दर्द एक माँ को विलादत के वक्त में होता है, उस दर्द को अगर 100 मर्दों में तकसीम कर दिया जाए, 100 मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे। माँ वो हस्ती है, माँ अजीम नेमत है। उस नेमत की कदरदानी करो, उस नेमत की कदरदानी करो। उस माँ को अपने सीने से लगाओ, उसे चूमो, उसके माथे को चूमो। इसीलिए नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि देखने पर हज का सवाब है। सोचो, जब देखने पर हज का सवाब है, उसकी खिदमत पर क्या मिलेगा? उसकी खिदमत पर क्या मिलेगा? माँ बाप अजीम नेमत है, उनकी कदर करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये माँ बाप की खिदमत ही तो थी, ये माँ बाप की खिदमत ही तो थी कि उवैस कर्नी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उतार कर दिया, अपना जुब्बा उतार कर दिया और उमर से कहा, ऐ उमर, ये मेरा जुब्बा है, अवैस आएगा, कर्न के इलाके से आएगा, जब वो आएगा तो इस जुब्बे को, मेरे जुब्बे को अवैस को देना और कहना तेरा नबी तुझे हदिया देकर गया है। अल्लाह अकबर। और कहा, तू भी उसे मगफिरत की दुआ कराना। अली से भी कहा, अली तुम भी उससे मगफिरत की दुआ कराना और कहना कि तुम्हारा नबी कह गया कि पूरी उम्मत की मगफिरत के लिए अवैस दुआ करे। कहा, क्या बात थी? माँ का खिदमत गुजार था, माँ का फर्माबरदार था, माँ की खिदमत का आदी था। अल्लाह ने माँ की खिदमत पर वो मकाम अता फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी हदिया दे रहे हैं और नबी कह रहे हैं, दुआ करो मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए। अल्लाह, माँ वो अजीम नेमत है और माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। बेटे से रूठ भी जाए, बेटे से रूठ भी जाए, बेटा रुस कर बाहर चला जाता है, लड़ी उससे है, बेटे से लड़ी है, बेटा बाहर जाता है, किचन में आकर अल्लाह ने क्या भी कर लेना नहीं, अल्लाह उसे अच्छा रख, अल्लाह उसे अच्छा रख, आफियत से लेकर आफियत से ले जा, आफियत से ले आ। दुआ कर रही है माँ। बेटा नहीं आता, बेटा गुस्से में है। बहन कहती है, अम्मी आओ, मैं खा लियो माँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खा लो, भूख नहीं है। माँ को भूख नहीं लगती उस वक्त। बाप भी खा ले, भाई भी खा ले, बहन भी खा ले, माँ की भूख मर जाती है, भूख खत्म, सब सो जाए, माँ जागती रहती, माँ जागती रहती। बहन आकर कहती है, सो जाओ मी, आए तो बेल मारती, सो जाओ मी। नहीं माँ, नींद नहीं आ रही। कान चली गई कि नींद? उन्हें नहीं आ रहा, को मुझे क्या भी नींद नहीं आ रही। कुछ नहीं, झूठ है। बेटे से मोहब्बत है, तब तक बेटा नहीं आता। माँ कहती है, नहीं चाहती मेरी आंख लग जाए और सुनाई ना दे और वो बाहर ही खड़ा रहे, मेरा बेटा इंतजार करे, मुझे बर्दाश्त नहीं। बाप डांटता है, सो जाओ जी, तुम्हारे लाड़ से उन्हें वैसा हो गया। बाप की डांट बर्दाश्त करती है, कुछ नहीं कहती, खामोशी से सह जाती है। आधी रात में दबे पांव जब बेटा आता है, आहिस्ता आता है, किसे भी पता ना चले, माँ आकर लाइट डालती है, बात नहीं करती, बहन को उठाती है, उसे आया रोटी पका को दे। पहले से पका कर रखना क्या था, मेरा बेटा गरम रोटी खाए, मेरा बेटा गरम गरम खाए।
अम्मी तुम्हें उतनी मोहब्बत है कि तुम्हें पका को दे डालूं। बहन बोले माँ, उससे में कहती है मेरे हाथ का नहीं खाता तो खिला। वो नियमत है माँ, माँ वो नियमत है, उसे आज आंख दिखाते हो, उसे पुलिस में कंप्लेंट की बात। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मेरा दिल भर गया है। ऐसे ऐसी बातें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटी को थप्पड़ मारा। हमने सुना है बेटी ने माँ को थप्पड़ मारा, कभी सुना? क़यामत की निशानी। बेटी माँ को थप्पड़ मार रही है, बेटा माँ को थप्पड़ मार रहा है, माँ सह जाती है। बचपन से आदत है ना उसे। बचपन में बच्चे माँ को थप्पड़ मारती है, माँ उन हाथों को चूम लेती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा बेटा इस काबिल है, हाथ उठ रहा है, देखो भी इसका हाथ उठ रहा है। माँ को मारा है, माँ चूमती है, और उसी माँ के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक जोड़े को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बहुत प्यारा बेटा था। बीवी और शौहर दोनों ने उसकी बेहतरीन तरबियत की, अच्छा से उसे पाला पोसा बड़ा किया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बनाया, इस काबिल बनाया कि वो बादशाहों के दरमियान खड़ा हो सके। लेकिन बेटे से जब बाप मिलने आया, किसी बिजनेसमैन ने पूछा वो कौन है, कहा मैं कैसे बताऊं, अब इतना बड़ा हो गया था ना वो, मैं कैसे बताऊं कि वो मेरा बाप है। उसने कहा हमारे घर के माली आए थे, घर के माली आए। फिर उसी बाप ने, उसी माँ ने एक बेहतरीन नेक औरत से निकाह कराया, लेकिन वो औरत गांव में रहना नहीं चाहती थी। बेटे से कहा कि हम शहर में रहेंगे, शौहर से कहा हम शहर में रहेंगे। माँ बाप ने बखुशी तस्लीम किया, आओ बेटा, उसे ये मिजाज का सेट होता, तुम्हें शहर में रहो, हम गांव में रहेंगे। बेटे को बीवी के साथ रवाना किया और कहा हफ्ते में एक मर्तबा कम से कम आ जाया करो। बेटा हफ्ते में आ जाता, 1-2 घंटे लेट हो जाते, बीवी बरसने लगती, मिलता सो एक दिन, वो भी तुम्हें जाकर वहाँ बर्बाद कर कर आते, क्या मिलता बूढ़ा बूढ़ी के पास बैठ कर तुम। अब ये सह जाता, लेकिन रोज की करकराहट से बेजार होकर ये हफ्ते में एक दिन आना भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मक्का मुकर्रमा से कुछ वैकेंसीज खाली हुई, ये हकीकी वाक़या है। मक्का मुकर्रमा में उसे नौकरी लगी, तो ये माँ बाप के पास आया कि मैं मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हूँ। माँ बाप ने कहा हम तो बड़े खुश हैं कि हम तो कभी वहाँ ना जा सकें, हमारा बेटा जाए, बहुत अच्छी ज़मीन है, जाओ बेटा। बेटा बहू बच्चों को साथ लेकर चला गया और वहाँ जाकर शुरू में कुछ खर्च भेजता रहा, लेकिन उसके बाद वो खर्च भी बंद हो गया, बेटा भी बंद हो गया, न कॉल आई न फोन का उतना जमाना था। तो परेशान माँ बाप हैं। 13 साल गुजर गए, 13 साल गुजर गए और वो बेटा हर साल हज करता रहा। हर साल उसने हज किया, 13 हज उसने किए। एक मर्तबा मस्जिद हराम के और बैतुल्लाह के दरमियान में तवाफ करते हुए वो खड़ा रो रहा था और अल्लाह से दुआ कर रहा था। किसी अल्लाह वाले की नज़र उस पर पड़ी, पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा कि मैं 13 साल से हज कर रहा हूँ, लेकिन हर बार हज करने के बाद मैं ख्वाब देखता हूँ, तो कहने वाला कहता है तेरा हज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। हर साल यही सुनता आ रहा हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है मुझसे? तो वो समझ गए कि ज़रूर कुछ बात है। अल्लाह वाले दिल पर नज़र की, उन्होंने कहा तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा हाँ। क्या हाल है उनका? कहा कि पता नहीं।
पता नहीं कि क्या हाल है। यही वजह है, पहले जाकर उस हज को मनाओ, बाद में तुम्हारा हज कबूल होगा। वो फौरन घर आया, अपने टिकट तैयार किया, बीवी ने आए शाए करना शुरू की। उसने तेज निगाह से देखा, खबरदार जो अब कुछ कहा। जब मर्द वाकईतन सीरियस होता है तो बीवी भीगी बिल्ली बन जाती है। तो वो खामोश हो गई और ये निकल गया अपने गांव को पहुंचा। पाकिस्तान या हिंदुस्तान पहुंचकर वो अपने गांव में जा रहा है और ये सोच कर जा रहा है कि अब मैं जाऊंगा, माँ मुझे डांटेगी, माँ मुझे अल्लाएगी, परेशान करेगी। मैंने तो फ़ोन भी नहीं की, ख़त भी नहीं लिखा, पैसे भी नहीं भेजे, न जाने अब अब्बू क्या कहेंगे और माँ क्या कहेगी। ये डरता हुआ जा रहा है, ये डरता हुआ जा रहा है। एक 10 साल का बच्चा गुजरा, उससे पूछा कि यहाँ पर एक बूढ़े माँ बाप रहते थे, माई रहती थी, क्या हुआ, वो कहाँ है? कहा वो जो बूढ़े मियाँ थे वो तो उनकी तो वफात हो चुकी, बाप तो चला गया। 6 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। अब उनकी जो बीवी थी, बूढ़ी माई थी, उनको लकवा पड़ गया है, उनका हाथ पैर लकवा पड़ गया है। और सुना है कि उनका बेटा है जो मक्का मुकर्रमा में रहता है। न जाने वो कितना मनहूस होगा जो अपने माँ बाप को पूछ कर नहीं देखता। 10 साल का बच्चा, उसे नहीं पता था कि यही वो बेटा है। तो वो परेशान हो गया और कहने लगा कि उसकी आंखों की बीनाई भी चली गई है, उसे नजर नहीं आता। बस गांव के कुछ अफराद कभी जाते हैं, उसकी खिदमत कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा मर जाना ही बेहतर है। बच्चे ने कहा, उसका दिल रोने लगा, परेशान हो गया। अब इतना हाल हो गया है, माँ मुझे बात भी नहीं करेगी, परेशान होगी और मैं बाप के जनाजे में भी न आया, कितना मुझे डांटेगी, ये सोच कर जा रहा है। दबे दबे कदम अपने जब घर में रखा तो देखा कि माँ अपना एक हाथ उठाए हुए अल्लाह से दुआ कर रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है। ये अपना कान आगे बढ़ाता है और सुनता है कि मैं सुनो तो सही ये क्या मांग रही है। ये दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरा एक ही बेटा, ऐ अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, उसे खैरियत से रखना, उसे आफियत से रखना, उसे खुश रखना। ऐ अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, बस मेरी ख्वाहिश है जब मेरा इंतकाल हो मेरा बेटा मेरे करीब रहे, कम से कम कब्र में उतारने के लिए तो आ ही जाए। माँ को ये परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं कि उस बेटे ने खर्च नहीं भेजा, माँ दुआ कर रही है वो कैसा होगा। अल्लाह उसको सुकून से रखना। माँ ये हस्ती है मेरे दोस्तों, माँ ये हस्ती है। जब बेटा परेशान है कि माँ डांटेगी, लेकिन माँ इतना मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो। बाप भी कम नहीं, बाप वो अजीम हस्ती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप वो अजीम हस्ती है, उसकी आवाज बड़ी नेमत है। तुम्हारे घरों में उसकी आवाज बड़ी नेमत है, बाप की आवाज बड़ी नेमत है। और घर के बाहर बाप की जूतियों का जो रोब है वो अलग ही रोब है। अब्बा की जूतियां नहीं, कैसा होना दाखिल हो जाओ, बाप की जूतियां है, बेटा खामोश हो जाता है। बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। माँ के 5-6 मिस कॉल आ जाते हैं, चल जाता है। माँ के 5-6 मिस कॉल, क्या मेरी अम्मी को समझा लिया जा, बाप का एक कॉल आ जाए, बेटा नहीं काटेगा, कहीं भी रहे,
چپ. باپ بڑی نعمت ہے. باپ بڑی نعمت ہے. باپ سورج کی مانند ہے نوجوانوں. باپ سورج کی مانند ہے. گرم ضرور ہوتا ہے لیکن نہ ہونا تو اندھیرا چھا جائے گا. اندھیرا چھا جائے گا. تمہارے گھر کو کوئی روشن نہیں کر سکے گا. اس باپ کی قدر کرو. اس باپ کی قدر کرو. وہ باپ تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم انہیں سرے عام لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دو. تم ان کا سر جھکا دو. نہیں نوجوانوں، نہیں میرے دوستوں، ماں باپ کی قدر کرو. باپ عظیم نعمت ہے. باپ عظیم نعمت ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے یہاں کچھ مٹھائی چلتی ہے. نہیں نہیں نہیں، میرا بیٹا ہوا ہے. آنند سے مٹھائی لگائے. سب کو خوشی میں کہ مجھے بیٹا ہوا ہے. اور آج بیٹے کے فون میں پیسے بھرپور ہیں لیکن باپ کو ریچارج کرانے کا وقت نہیں ہے. بیٹا کو کہنے کے لیے باپ کو 3 دن ہمت کرنی پڑتی ہے کہ میرے فون کی کرنسی ہوگی، کیسا بولنا. 3 دن باپ ہمت کرتے کرتے گزارتا ہے اور تم 3 سیکنڈ بھی ہمت نہیں کرتے تھے. کیا دیکھے ابو مجھے وہ ہونا، ابو مجھے وہ ہونا. باپ کو پتا تھا اگر میں آج یہ چیز اسے دلاؤں گا تو کل رات میں بھی مجھے اوور ٹائم کرنا پڑے گا. باپ نے خوشی سے وہ چیز دلائی. آج تمہارے فرینڈ میں، آج تمہارے فون میں گرل فرینڈ کا ریچارج کب کرانا ہے ریمائنڈر رکھا ہوا ہے، ورنہ میری محبت جھوٹی ہو جائے گی. اس کے پاس وہ سننا کہتے ہیں تمہیں کتنا خیال کرتی نہ جانو میرا، میں بولنے سے پہلے ریچارج کرتی. اس کے پاس سننے کے لیے ریمائنڈر رکھا ہوا ہے. باپ کے لیے کوئی آپ تمہارا نہیں بنا نوجوانوں. کوئی آپ نہیں ہے، کوئی ریمائنڈر نہیں ہے تمہارے پاس. باپ کی دوائیاں ختم ہو گئی. تم مر کیوں نہیں گئے اس سے پہلے کہ باپ کی لبوں پر آیا بیٹا میری دوائیاں ختم ہو گئی. باپ کی دوائیوں کو ختم ہونے کے بعد، اس کے کہنے کے بعد لا کر دینا تمہارے اولاد کے نہ ہونے سے بہتر. بڑی نعمت ہے نوجوانوں. ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو، ان کی قدر کر لو. نہیں ملیں گے یہ نعمتیں، نہیں ملیں گی. میری بہنوں، تم جیسے اپنے ماں باپ کو چاہتی ہو نا، ایسے ہی بیٹے کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چاہیں. تم چاہتی ہو کہ تمہاری آنے والی بھابھی ہمارے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرے، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ ہم بھی جس گھر میں جا رہی ہیں وہاں ان کے ماں باپ کی خدمت کریں. تم یہاں چاہ لو، اللہ وہاں چاہ لیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ماں باپ کی قدر دانی ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کو اپنے سروں کا تاج بناؤ. نوجوانوں تم سے گزارش کرتا ہوں زندگی میں انہیں خوشی پہنچاؤ. زندگی میں خوشی پہنچاؤ. مرنے کے بعد تم لاکھ مسجدیں بنا لو، ثواب تو جائے گا، لیکن باپ کی وہ ہنسی نہیں دیکھ پاؤ گے، باپ کی وہ مسکراہٹ نہیں دیکھ پاؤ گے، باپ کی وہ خوشی نہیں دیکھ پاؤ گے. اب نوجوانوں تمہارے لیے سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ اچھے مارکس لے کر آ جائیں، باپ خوش ہو جائے گا. جو شادی کے لائق نوجوان ہیں وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق شادی کر لیں، تمہارا باپ خوش ہو جائے گا. ابا تمہیں کیسا بولے ویسا باپ، ابا تمہیں کیسا بولے ویسا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو زلزلہ آیا ہے پچھلی صدی میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں پوری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی. پورے 10 دن یا 3 دن کے بعد وہ کانکریٹ ہٹایا گیا، بلڈنگ ہٹائی گئی. چائنا کا واقعہ ہے. تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک
बच्चा दूध पीता बच्चा और एक माँ दोनों बेहोश हैं, लेकिन जिंदगी बाकी थी। उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, अस्पताल ले जाया गया। जब वहाँ पर बच्चे को भी होश आया, माँ को भी होश आया। अल्लाह जिसे बचाना चाहे बचा लेते हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए, आपने अभी भी देखा होगा कि अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है कि जो बचना चाह रहे हैं, अल्लाह ने जिसे बचाना चाहा बचा लिया। पूरी बिल्डिंग गिर गई लेकिन बच्चे जिंदा बाहर निकल रहे हैं। ये पूरी हकीकतें बता रही हैं। अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता, अल्लाह जिसे मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। ये दो बच्चे, माँ और बेटा, जिंदा थे। तो माँ की जब इलाज किया गया तो देखा गया कि माँ की ये 10 की 10 उंगलियां कटी हुई